Hello everyone. This is the third video from the complex number JEE Mains 2022. इसमें we are going to discuss the July attempt questions. Previous two videos में we have discussed June attempt question of 2021. तो अगर आपने वो videos नहीं देखे तो you can go through those videos also. So you will get an idea किस type of questions आपको JEE Mains में मिलते हैं, ठीक है? And it will be good revision for your preparation. Okay. So let's start with the first question here. The question is let alpha, beta, gamma, delta are the roots of this equation. Then find the value of alpha raised to 2021, beta raised to 2021 and similar so right. अब फर्स्ट थिंग जैसे आप इसको देखो, इसको आपको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो व्हाट यू कैन डू इज एक तो आप इसको देखो फैक्टराइज करने की कोशिश कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन क्लियरली से दिस इज अ जीपी, ठीक है। और अगर ये जीपी है तो आई कैन राइट दिस इज 1 प्लस एक्स, ऐसा लिख लो इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 इक्वल टू 0 एंड आई कैन सॉल्व दिस जीपी. What is the sum of this GP? अब आप देखो ये GP में obviously x cannot be equal to 1. In this case x cannot be equal to 1 because x1 satisfy नहीं करेगा, correct? So you can see अगर x1 नहीं है मतलब common ratio of this GP is not equal to 1. So what is the sum of this GP? A into r raised to number of terms minus 1 upon r minus 1. This is equal to 0 where x is not equal to 1, correct? So you can see what is this x raised to 5 minus 1 equal to 0. Now what is x raised to 5 minus 1k? X raised to 5 equal to 1, that is x is equal to 1 raised to 1 by 5. So अब x raised to 1 by 5 की there will be 5 values which are fifth roots of unity. मतलब जो ये जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा है इसकी जो वैल्यूज हैं, x की वैल्यूज क्या है, इसके रूट्स है which are अल्फा बीटा गामा डेल्टा. तो I can say these are alpha beta gamma delta and one root will definitely be equal to 1, correct? Because fifth root of 1 will definitely be equal to एक nth root of unity तो 1 होता ही है, ठीक है. So these are the values of alpha beta gamma delta. And what are these values? These are, you can directly say these are fifth roots of unity, ठीक है. ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया. अब इसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है. तो अगर आप ध्यान से देखो तो वी नो द प्रॉपर्टी दैट लेट्स से अगर आप फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करते हैं तो आई कैन से 1 रेज टू p प्लस अल्फा रेज टू p प्लस गामा रेज टू p प्लस डेल्टा बीटा रेज टू p प्लस गामा रेज टू p प्लस डेल्टा रेज टू p. Fifth root of unity which are 1 alpha beta gamma delta, correct? This value is equal to, it is either 0 or it will be equal to how many times we have fifth root of unity मतलब 5. या तो ये वैल्यू 0 होगा या फिर ये 5 होगा. ये अपने प्रॉपर्टीज ऑफ nth root of unity में क्या होगा, if this power is multiple of n, that is nth root of unity में n, तो ये वैल्यू क्या होता है, it will be equal to n, otherwise this will be equal to 0, ठीक है. तो this is 0, this is basically 0 if p is not a multiple of 5 and this is 5 if p is multiple of 5. तो अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, दिस इज वी हैव ये जो वैल्यू है, देखो अगर पावर p अगर हम 2021 पुट करते हैं which is not a multiple of 5, not a multiple of 5, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, this term will become 0. p का वैल्यू अगर हमने 2021 पुट किया, so can I say 1 alpha raised to 2021, beta raised to 2021 and so on, delta raised to 2021, this is 0, correct? So what is the answer for our question? This is equal to -1. So what is the answer? This is -1. So this is how we can easily relate this question to nth roots of unity, ठीक है. So I hope this is clear. ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए. The pth power of nth root of unity या तो वो 0 होता है या फिर वो n के बराबर होता है, ठीक है. This is how we can solve this question, okay. So let's take the next question now. The question is let for n belongs to natural number, let Sn be a set of complex numbers such that z minus 3 plus 2 iota modulus is equal to n by 4. Similarly, Tn another set is defined for the complex number. The question is number of elements in the set. इस सेट में कितने एलिमेंट्स. अब ये सेट n क्या है, ये आपको जो गिवन सेट है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सच दैट Sn इंटरसेक्शन Tn इज 5. मतलब क्या हुआ, इन दोनों सेट में Sn और Tn
इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, इसका इंटरसेक्शन 5 मतलब देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इन दोनों सेट में वैल्यूज देखो आप ध्यान से क्या होंगी, तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ये आप देखो, you can clearly see this is a circle, मतलब all these points z will lie on a circle, you can see we have z minus z naught modulus equal to r, इस टाइप का इक्वेशन है, and we know this is all the points lie on the circle with center z naught and radius r. So if you take Sn, मतलब this is set of all the complex number which lie on a circle whose center is, इसमें z naught क्या होगा 3 minus 2 iota, you can clearly see 3 minus 2 iota, what is the center 3 minus 2, और इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस इज इक्वल टू n by 4, तो मतलब ऑल दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल लाई ऑन दिस सर्कल। ठीक है, सिमिलरली सेम लॉजिक से सेकंड के लिए क्या होगा, सेंटर 2 minus 3 और रेडियस 1 by n। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि भाई इन दोनों सर्कल्स पे, इन दोनों सेट में कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो, मतलब इन दोनों सर्कल में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, राइट। सो नाउ इफ आई से ये आपके पास दो सर्कल है, तो व्हाट कैन बी द पोजीशंस ऑफ सर्कल कि उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो, राइट। सो आई कैन हैव वन सर्कल समथिंग लाइक दिस, वन केस समथिंग लाइक दिस, द सर्कल्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, नॉट टचिंग, दे आर आउटसाइड ईच अदर, करेक्ट। और आई कैन हैव वन केस जहां पे वन सर्कल इज कंप्लीटली इनसाइड द अदर सर्कल, ये भी पॉसिबल है, राइट। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है जहां पे देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन द सर्कल। तो नाउ इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस का कंडीशन क्या होगा, इफ द सर्कल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, देयर इज नो कॉमन पॉइंट, तो यू कैन सी द सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस, ये r1 और ये r2, रेडियस ये r1 और ये r2, करेक्ट। तो कैन वी से c1 c2 द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स शुड बी ग्रेटर देन r1 plus r2, राइट। तो यहाँ पे देखो दिस इज c1 c2, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, यू कैन क्लियरली सी दिस इज √2, इनका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर द फर्स्ट केस I can say the distance between the centers, that is c1 c2 should be greater than r1 plus r2, तब इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। so what is the distance, this is √2, should be greater than r1 plus r2, that is 1 by n plus n by 4, n by 4 plus 1 by। अब आपको क्या करना है, बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे। So if I solve this inequality, you can clearly see this is 4√2n greater than 4n, 4 plus n square, 4 plus n square. I hope this is clear. So this is, now we have to just solve this, n square minus 4√2, n minus 4 less than 0, okay, plus 4 less than 0. So if I just solve this, एक तो आप इसको क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स मतलब वो माइनस बी प्लस माइनस बी का माइनस 4ac अपॉन 2 सॉल्व कर लो, अदरवाइज n, दिस इज n माइनस 2√2 होल स्क्वायर, डायरेक्टली परफेक्ट इसका बना के बना देता हूँ मैं, देखो n स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2√2n, ये आ जाएगा प्लस 4, ठीक है, ये माइनस 8 माइनस प्लस 4, तो बेसिकली ये माइनस 4 हो गया लेस देन 0। I hope this is clear. So you can see this is n minus 2√2 whole square is less than 4. So now we can solve this. This is n minus 2√2 less than 2 greater than minus 2. ठीक है, अब आपको सिर्फ इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। तो दिस इज n is less than 2 plus 2√2 greater than 2√2 minus 2, ठीक है। अब n क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर, क्वेश्चन में मेंशन है n नेचुरल नंबर है, तो यू कैन सी दिस इज n इज बिटवीन, दिस इज 2 into 1 point something, मतलब 2 point something आएगा, ये प्लस 2 दैट इज 4 point something, ये होगा 4 point something, दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज 2 point something, तो ये 0 point something आएगा। तो इसके बीच में नेचुरल वैल्यूज क्या होंगी, नेचुरल वैल्यूज विल बी n equal to 1 2 3 and 4, करेक्ट। तो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर द फर्स्ट केस। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट केस सॉल्व किया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस वी आर सेइंग दैट वन सर्कल इज लाइंग इनसाइड द अदर सर्कल, करेक्ट, तो भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। और व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस, यू कैन सी द सेंटर्स, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स will definitely be less than or equal to less than r1 minus r2, r1 minus r2, क्योंकि इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज अगर इक्वल हो गया तो टच कर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए
द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर शुड बी लेस देन मॉडुलस ऑफ r1 माइनस r2, क्योंकि हमको पता नहीं कि विच वैल्यू इज ग्रेटर। ठीक है, अब बस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो व्हाट इज c1 c2, अगेन दिस इज √2 लेस देन व्हाट इज दिस इज n/4 माइनस 1/n मॉडुलस। ये हमारे इक्वेशन आ गए। ठीक है, अब यू जस्ट सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है टू गेट द आंसर। ठीक है, n इज अ नेचुरल नंबर, तो यू कैन सी, देखो ये जो वैल्यू होगा, दिस वैल्यू n/4 माइनस 1/n, तो आई कैन से दिस इज n/4 माइनस, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको स्क्वायर कर दें, पहले स्क्वायर कर दें, तो दिस इज 2 लेस देन, ओके, तो ये बाई क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। तो ठीक है, तो n नेचुरल नंबर है, तो आई कैन से दिस इज 4√2n, ठीक है, इज लेस देन मॉडुलस ऑफ n स्क्वायर माइनस 4। आई कैन राइट दिस n स्क्वायर माइनस 4, और ये 4√n, क्योंकि सब पॉजिटिव नंबर्स है। नाउ देखो वी हैव टू जस्ट सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। तो एक तो ये कि आप देखो पूरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करके फिर चेक करो कि क्या पॉसिबल होगा। हमको तो सिर्फ क्या करना है, देखो चेक करना है कि देखो हमारे 4 सॉल्यूशन तो आ ही गए हैं, तो आंसर तो हमको समझ में आ गया है कि इसका आंसर डी होगा ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि ऑब्वियसली 3 से ऊपर ही आंसर आएगा। ठीक है, बट आपको फिर भी बता रहा हूँ कि कैसे इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, कि कैसे हम एनालाइज करते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आएंगे। तो यू कैन सी हियर, इसका जो ग्राफ होगा n स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, आप x स्क्वायर माइनस 4 टाइप का ग्राफ समझ लो, तो इट विल बी अ पैराबोला, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, और ये जो होगा y इज इक्वल टू समथिंग x, तो 4√2x टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, विच इज समथिंग लाइक दिस, आई एम जस्ट ड्राइंग अ रैंडम ग्राफ, ऐसा लाइन पासिंग थ्रू रीजन। तो यू कैन क्लियरली से देखो, एक इंस्टेंट ऐसा होगा, उसके बाद से दिस पैराबोला विल ऑलवेज बी अबव द स्ट्रेट लाइन। तो मतलब क्या हुआ, दिस वैल्यू आफ्टर सम वैल्यूज ऑफ n व्हिच वी मे फाइंड, ठीक है, दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू। तो उसके बाद तो सभी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगे n की, तो मतलब इसके कितना सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली आंसर दिस। ठीक है, वैसे आंसर हमारा यहीं से आ गया, बिकॉज उतना करने की जरूरत नहीं, बिकॉज 4 सॉल्यूशन यहाँ से आगे ऑप्शन से उन्होंने इस तरह से दिए कि 3 के ऊपर ही आंसर आएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। So I hope you understood this. मैं again we have just used the coordinate geometry. ये coordinate geometry में आपने किया है how to apply the condition for circles to touch, circles to intersect, one circle inside the other circle, one circle is outside the other circle. तो वो कैसे हम apply करते हैं? This is what we have done in coordinate geometry also. ठीक है? So that's it for this question. So now let's take the next question. The question is, for z belongs to complex number, if the minimum value of this expression is 5√2, then find the value of p. p का possible value क्या हो सकता है? ठीक है, so first you understand geometrically what is the meaning of these two. ठीक है, so we know that if you have, let's say, modulus of z1 minus z2, what is this? This is a distance between complex number represented by points represented by the complex number z1 and z2, ये होता है। ठीक है, so you can see what is this term representing. This is the distance between, this is a distance between complex number z and 3√2, and this is the distance between the complex number, same complex number z and p√2 iota. इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में ये आपका डिस्टेंस है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू फाइंड द, और क्वेश्चन में गिवन है कि इनका जो मिनिमम वैल्यू है, सम ऑफ दीस टू डिस्टेंसेस इज मिनिमम इज 5√2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। अब आप थोड़ा ज्योमेट्रिकली यहां से देखो, लेट्स से दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 व्हिच इज 3√2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो 3√2, एंड दिस इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स से दिस इज z2 व्हिच इज p√2 iota। Now z is a moving point, z let's say ये moving point है ये। Now the question says कि p, the distance between this z and z1 and distance between z and z2, इसका सम जो होना चाहिए that should be minimum। ठीक है, अब इसका मिनिमम वैल्यू कब पॉसिबल होगा, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो देखो अगर मान लीजिए ये पॉइंट p है, इसको हम एक वेरिएबल पॉइंट p अज्यूम करते हैं, लेट्स से दिस इज पॉइंट a and this is point b। तो in this triangle, in a triangle we know that sum of two sides is always greater than the third side।
थर्ड ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अब पी ए प्लस पी बी मिनिमम से मिनिमम कहाँ अप्रोच कर सकता है? इट कैन अप्रोच टू ए बी ओनली, क्योंकि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। तो ये मिनिमम से मिनिमम वैल्यूज को अगर हमको फाइंड करना है तो पी अगर ए बी के बराबर होना है, पी ए प्लस पी बी, तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी ऑन दिस लाइन। तभी आप देखो पॉइंट पी ए प्लस पी बी विल बिकम ए बी। इसका मतलब यू कैन सी दिस पॉइंट जेड विल डेफिनेटली बी ऑन दिस लाइन। मतलब ये जो जेड होगा, ये जो जेड है, दिस इज ऑन द लाइन दिस। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है? दिस मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 5√2, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वही 5√2 के बराबर है। ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी ए प्लस पी बी इज व्हाट? दिस ए बी। तो व्हाट इज ए बी डिस्टेंस? ठीक है, तो ए बी विल बी इक्वल टू, इनका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा तो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ 3√2 माइनस p√2 आयोटा, p√2 आयोटा। क्या किया हमने? द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पी ए प्लस पी बी कैन बी इक्वल टू ए बी ओनली। ठीक है, जब ये पॉइंट्स क्या हो जाए? कोलिनियर हो जाए। तो व्हाट इज द मिनिमम पी ए प्लस पी बी? दिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन z1 z2? दैट इज पॉइंट ए बी के बीच डिस्टेंस क्या होता है? मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2। तो ये आप लिख दिया हमने। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, और ये क्या आपको गिवन है? दिस इज इक्वल टू 5√2। दिस इज गिवन टू यू। So now what is the magnitude? This is under root of 3√2 square plus p√2 square. ठीक है, considering p is a real number because options में देखो p सब real numbers ही हैं। ठीक है, this is equal to 5√2. So now you have to just solve this equation. This is 9 into 2, that is 18 plus 2p square is equal to 2550. This is 50, correct? So this is 2p square is equal to 32. ठीक है, 32, that is p square equal to 60. तो p का वैल्यू क्या हो सकता है? p का वैल्यू will be equal to plus or minus 2. So that is the answer. Sorry, p plus minus 4. So what is the final answer? In the options it is given that p equal to 4. So that is the answer for this question. तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस। थोड़ा ज्योमेट्रिकली अगर समझोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर विल बिकम इजी। थोड़ा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, so now let's take the next question. The question is again geometry. Let O be the origin of A be the point z1 equal to 1 comma 2, 1 plus 2 iota. B is a point z2 whose real part is less than 0. Such that triangle OAB is a right angle isosceles triangle with OB as hypotenuse. Then which of the following is not true? Not true. ठीक है, तो now let's draw the diagram. एक थोड़ा diagram से आपको आइडिया समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, so let's say this is real axis, this is imaginary axis. The question is z1 is a point 1 comma 2. तो ये let's say this is the point P which is Z. ठीक है, this is A, sorry not P, A. ठीक है, this is 1 comma 2, that is 1 plus 2 iota, Z1. ठीक है, now B is another point Z2 such that real part of Z2 is less than 0. मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, लाई करेगा अपना कॉम्प्लेक्स नंबर B. ठीक है, such that triangle OAB should be 90 डिग्री. ठीक है, OAB is a right angle isosceles triangle, OB hypotenuse है, मतलब ये जो लाइन होगा इधर, मतलब ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये ऐसा, ये 90 डिग्री होगा. ठीक है, और ये OB जो होगा दिस इज हाइपोटेन्यूज. ठीक है, दिस इज हाइपोटेन्यूज. तो ये हमने डायग्राम इसका ड्रॉ कर लिया. ठीक है, नाउ दिस इज दिस इज हाइपोटेन्यूज और ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ठीक है, OB इज द हाइपोटेन्यूज. अब क्या करना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, तो आपको Z1 Z2 पे कमेंट करना है. तो आप देखो Z2 ही फाइंड कर लो, सब कुछ सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो यू कैन सी हियर दिस एंगल इज गिवन टू यू, these two sides are equal. तो आप ध्यान से देखो, if I consider this vector, if I consider this vector and if I consider this vector, ये ऐसा हमने कर. ठीक है, what is this point B? Let's say this is Z2, जो हमको क्वेश्चन में मेंशन है, this is Z2. So I can say what is this vector? This is Z2 minus Z1.
and what is this vector? This is 0 minus z1, मतलब minus z1. I hope this is clear. So now I hope you remember, if you have two vectors और इसके बीच में अगर एंगल गिवन है तो you can easily apply the rotation theorem, the Koni's method, right? So you can see if I rotate this vector in anti-clockwise direction by 90 degree, you will have this vector. तो if I want to rotate this, मतलब इस वेक्टर को अगर रोटेट करना है तो दिस इज z2 माइनस z1 वेक्टर, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया e रेज टू आयोटा, कितने एंगल से रोटेट करना है 90 डिग्री से, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू दिस वेक्टर. व्हाट इज दिस वेक्टर? दिस इज 0 माइनस z1, मतलब माइनस z1. So what we have done is we have just rotated this vector by an angle 90 degree in anti-clockwise direction. ये ऐसे anti-clockwise direction में ऐसे rotate होगा, correct? So you can see here this is z2 minus z1. What is e raised to iota pi by 2? This is iota and this is minus z1, correct? अब आपको देखो z1 given है, आपको सिर्फ z2 ही फाइंड करना है, तो you can see what is this? This is z2 minus z1 is equal to 1 by iota. क्या होता है? Minus iota. So this is z1 iota. So now you can see this is z2 minus what is z1? 1 plus 2 iota. तो ये 1 minus 2 iota हो गया. This is z1, that is 1 plus 2 iota into iota. 1 plus 2 iota into iota. So this will become iota और वो iota स्क्वायर हो जाएगा. This will be minus 2. ठीक है, 2 iota into iota minus 2 हो गया. So what is this z2 complex number? This is, you can see, minus 1 plus 3 iota. Minus 1 plus 3 iota. I hope this is clear. This is minus 1 और ये plus 3. ठीक है? So we have got the complex number z2. अब the question is, अब हमको finally comments कर लेते हैं. तो first question क्या है? Option A में देखो argument of z2. तो z2 जो complex number है, this is, you can see this is minus 1 plus 3 iota. तो अब इसका आर्ग्यूमेंट आपको लिखना है. आर्ग्यूमेंट क्या होता है इसका? अगर हम tan थीटा की बात करते हैं, व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू y2 अपन x y by x, तो दिस इज -3. ठीक है, 3 by -1. तो यहाँ पे देखो दिस इज द आर्ग्यूमेंट, ये जो एंगल होगा दिस इज द आर्ग्यूमेंट, दिस इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखना. Angle with real axis is the argument. Positive real axis is the argument. You can see here, if I take acute angle tan theta, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लें, this is equal to 3, तो थीटा क्या बनेगा आपका? tan inverse 3. हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है. ठीक है, तो this angle, you can see this angle is theta. ठीक है, which is equal to tan inverse. आप ऐसा बोल सकते हो, देखो ये -1,3 है, तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऐसे, तो ये दिस एंगल थीटा, दिस इज y, दैट इज 3 upon 1, which is equal to tan inverse 3. so this is tan inverse 3. this angle is tan inverse 3, क्योंकि ये एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं. 3 tan inverse 3 इज एन एक्यूट एंगल. अब बट आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट इज एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो व्हाट इज दिस एंगल? ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दिस इज पाई माइनस थीटा. तो what is argument of the complex number? This is pi minus theta, which is tan inverse 3. pi minus tan inverse, मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट है. I hope this is clear. ठीक है, now second क्या है? z1 minus 2 z2 का आर्ग्यूमेंट. तो यहाँ पे what is z1 minus 2 z2? तो this is z1, this is 1 plus 2 iota, 1 plus 2 iota minus 2 z2. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, this is minus 2, this is minus 1 plus 3 iota. So this is, you can see this is minus plus, this is 1 plus 2 iota plus 2 minus 6 iota. So this is 3 minus 4 iota. 3 minus 4 iota, correct? Now you can see this complex number is in the fourth quadrant. तो देखो 3 minus 4 ये है 3 minus 4. So what is the argument of this complex number? You can directly say what is this tan theta? Tan theta is equal to minus 4 by 3. Or you can directly say this is tan inverse minus 4 by 3. Argument क्या होगा? Argument of this complex number will be equal to tan inverse minus tan inverse. Let me write this. This is
tan inverse minus 4/3, tan inverse minus 4/3, और you can say this is minus of tan inverse 4/3, क्योंकि ये एंगल क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द आंसर, मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट है, आर्गुमेंट इज tan inverse minus 4/3. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन सी. ऑप्शन सी क्या है आपका, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z2. तो Z2 का मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज अंडर रूट ऑफ 10, ठीक है। सो दिस इज 9 + 1, मतलब √10 इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. तो दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. तो अब ऑप्शन तो एक ही बचता है, फिर भी इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी व्हाट इज दिस 2Z1, व्हाट इज दिस 2Z1, दैट इज 1 + 2 iota minus Z2, what is Z2, this is -1 + 3 iota, ये कॉम्प्लेक्स नंबर. तो दिस इज 2 प्लस, यहाँ से 2 + 1 दैट विल बिकम 3, और यहाँ से बनेगा 4 iota minus 3 iota which is equal to 3 + iota, ठीक है. So what is the magnitude of this complex number, magnitude of, ये आपको magnitude फाइंड करना है. This is equal to √10, मतलब this is not correct, मतलब this is wrong statement, हमको वही फाइंड करना which of the following is not true. तो मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप कैसे आपने ज्योमेट्री यूज किया है, दिस इज you have to understand the geometry, ठीक है. So that's it for this question, right? Now let's take the next question. The question is, if z is equal to x plus iota y satisfies modulus of z equal to 2 and modulus of z minus iota minus modulus of z plus 5 iota equal to 0, then which of the following is true? ठीक है, मतलब आपको x और y में रिलेशन फाइंड करना है. तो हम बेसिकली क्या करना है, देखो एक तो आप ऐसा कर सकते हो कि z is equal to x plus iota y ये सर्कल, और इसका इक्वेशन फाइंड कर लो, ठीक है. तो वहां से इन दोनों को इंटरसेक्ट करके हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप ज्योमेट्रिकली डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो. कैसे, what is modulus of z equal to 2, modulus of z equal to 2, this represent a circle whose center is 0, 0 and radius is 2. So let's say this is the circle with center 0, 0 and radius 2. ये हमारा रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, करेक्ट. रेडियस 2, इसका रेडियस 2 है, तो दिस इज 2, 0, दिस इज 0, 2, दिस इज 0, -2 और ये -2, 0. ये ओरिजिन सेंटर हो गया इसका, ठीक है. नाउ दिस इज, यू कैन सी दिस इज मॉड्यूलस ऑफ z minus iota is equal to modulus of z plus 5 iota. So you can see what is this representing. This is the distance between complex number z and complex number iota, and this is the distance between the complex number z and -5 iota, correct. And if they are equal, मतलब अगर आपके पास एक पॉइंट A है which is complex number iota और एक complex number B है which is -5 iota, a point is moving such that इसका डिस्टेंस इन दोनों से इक्वल है, ठीक है. दोनों से डिस्टेंसेस क्या है, बराबर है, मतलब this point z will definitely be on the perpendicular bisector of AB. perpendicular bisector of AB पे लाई करता है, PA equal to PB, then P जो होगा वो हमेशा perpendicular bisector पे लाई करेगा A और B के, करेक्ट. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं. देखो what are the points here, iota मतलब 0, 1, 0, 1 will be somewhere here, 0, 1, ठीक है. और सेकंड जो पॉइंट B है दैट इज -5, दैट इज -5 iota, that is 0, -5. So 0, -5 will be somewhere here, 0, -5. Now this will represent a straight line which is perpendicular bisector of this point and this point, 0, 1 and 0, -5. तो 0, 1 और 0, -4 का मिड पॉइंट क्या होगा, 0, -4/2 मतलब -2, ठीक है. यू कैन सी ये 0 और ये 1 -5, इन दोनों का मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे -4 + 1/2 मतलब -2. तो ये जो लाइन होगा दिस विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो इस पे लाई करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर z. तो यू कैन क्लियरली से देखो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो पॉइंट होगा वो तो यही पॉइंट है, करेक्ट. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, -2. आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है. एक बार फिर सुन लो, दिस इज रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन दिस सर्कल, करेक्ट.
This is representing all the complex numbers which are on the perpendicular bisector of line joining 0,1 and 0,1. ये perpendicular bisector हमने ड्रॉ कर दिया. कहां से पास होगा? इसके मिड पॉइंट से पास होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एंड यू कैन क्लियरली सी इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है? -4/2 मतलब -2. तो मतलब ये जो पॉइंट, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो होगा इट विल बी दिस लाइन. तो अब दोनों को सेटिस्फाई करने वाला कॉमन पॉइंट कौन सा हुआ? दिस पॉइंट ओनली. तो व्हाट इज दिस पॉइंट? 0,-2 मतलब x is equal to 0, y is equal to -2. अब x is equal to 0 minus y is equal to -2 पुट करके देख लेते हैं which option satisfies this. तो x is equal to 0 पुट करने पे you can say this is not satisfied. ठीक है, x is equal to 0 यहाँ पे पुट करोगे, again this is not satisfied. x is equal to 0 पे ये भी satisfy नहीं करता है, इसको आप चेक कर लेते हैं. x is equal to 0 तो ऑप्शन C is satisfying this. You can see, you can check this. और ये अगर क्लिक नहीं भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट, यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट z. ये तो आप डायरेक्टली बोल दोगे x² + y² = 4. एंड इसके लिए आप z = x + i/y पुट करके सिंपलीफाई करोगे तो यू विल गेट द इक्वेशन y = -2. यही आपको इक्वेशन मिलेगा जो कि ये इक्वेशन है, y = -2. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली check this, solve this question. Okay, so that's it for this question. Thank you. So now let's take the next question. The question is let the minimum value v naught of v, which is this expression, is attained at z = z0. z = z0 पे इसका minimum value exist कर रहा है. ठीक है, then find the value of this. ठीक है, तो यहाँ पे we have two questions. You have to find the minimum value. देखो v naught क्या है? minimum value of this expression. और किस वैल्यू ऑफ z पे वो मिनिमम आता है, दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड. ठीक है, तो अब हाउ कैन यू सॉल्व दिस? तो देखो z इज अ वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर. लेट्स से z इज x + i/y. हमने क्या किया? x + i/y पुट कर दिया. सो व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन? दिस इज v इज इक्वल टू x² + y² प्लस दिस इज x - 3 + x - 3 होल स्क्वायर plus y². We are just writing the modulus of this complex number, and this is x² plus y - 6 का whole square. ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया. ठीक है, if I simplify this, you can clearly see this is v is equal to x² plus x² plus x² मतलब 3x². This is 3y², and you will have -6x minus 12y, और यहाँ से we will have 9. This is 9 और 36. 9 plus ये 36 और ये 9 45. ये हमारे पास एक्सप्रेशन. तो बेसिकली आप इसमें से देखो कुछ कॉमन भी आ रहा है. v is equal to 3 times x² plus y² minus 6x minus 12y plus 40. सॉरी 3 कॉमन लिया हमने. This is 2y minus 4y और ये plus 50. ये हमारे पास एक्सप्रेशन. ठीक है, अब we have to find the minimum value of this expression. So now you can clearly see, I can easily find the minimum value of this. You can see this is x - 2 whole square. ठीक है, x - 1 whole square plus y - 2 whole square. So you can see क्या किया हमने, देखो x, ये x² - 2x, तो ये x² - 2x plus 1. ठीक है, ये y² - 4y plus 4. तो इफेक्टिवली यहाँ पे क्या बचेगा? दिस विल बिकम 10. ये अपने पास एक्सप्रेशन है. करेक्ट. सो दिस इज y, सॉरी v का वैल्यू. अब द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू. तो यू कैन क्लियरली सी, देखो ये स्क्वायर क्वांटिटी और ये स्क्वायर क्वांटिटी, तो मिनिमम से मिनिमम ये वैल्यू 0 हो सकता है. तो इस क्वांटिटी का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? 10 × 3 दैट इज 30. तो व्हाट इज v मिनिमम? वी आर सेइंग दिस इज v naught which is equal to 30. I hope this part is clear. ठीक है, और सेकंड क्या है? वी हैव टू फाइंड दैट कॉम्प्लेक्स नंबर जब ये मिनिमम है, तो दिस विल बी मिनिमम, v विल बी मिनिमम जब ये टर्म 0 होंगी. तो ये 0 मतलब x is equal to 1 and y equal to 2. करेक्ट. तो x equal to 1, y equal to 2 के corresponding complex number we are saying this is z naught. What is z naught? This is equal to 1 plus 2 iota. I hope this is clear. यहाँ तक I think this is clear. ठीक है, अब we have to just find this. अब हमको ये सब वैल्यूज फाइंड करना है. तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, then we can get this. तो this is modulus of, अब सिर्फ कैलकुलेशन है, this is modulus of 2 times
z naught square, which is 1 plus 2 iota square, minus z naught conjugate, this is 1 minus 2 iota, that is z naught conjugate, और इसका क्या करना है क्यूब, ये क्यूब, और ये प्लस 3 होल स्क्वायर। पहले हम ये फाइंड करते हैं, उसमें v नॉट स्क्वायर मतलब 900 ऐड कर देंगे लास्ट में, ठीक है। तो जस्ट सिंप्लीफाई दिस, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 2 टाइम्स 1 minus 4 मतलब -3, और दिस इज 4 आयोटा, 1 माइनस -4, ठीक है। सो दिस इज नेक्स्ट, दिस इज माइनस, अब इसमें आप a क्यूब प्लस b क्यूब लगाओ तो दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब, तो -2 आयोटा का क्यूब बनेगा। So what is 2 iota? 2 the cube is 8 और iota cube is minus iota. So this will become 8 minus 8 iota. तो ये -8 मतलब this is plus 8 iota. ठीक है? माइनस ये a क्यूब माइनस b क्यूब minus 3ab. तो this is 6 iota. 6ab. ठीक है? 3ab तो ये -6 और a plus a minus b which is 1 minus 2 आयोटा, 2 आयोटा और ये +3 मॉडुलस और इसका स्क्वायर। तो नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस, दिस इज -6 माइनस +8 आयोटा, थोड़ा केयरफुली हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। दिस इज -1 प्लस -1 माइनस 8 आयोटा, दिस इज यहाँ से -6 आयोटा प्लस हो जाएगा +6 आयोटा, ठीक है। एंड दिस विल बिकम 12 -12 क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर बनेगा -1, तो ये -12 और ये प्लस, दैट इज +12, ठीक है। और ये प्लस लास्ट में वी हैव 3 और ये स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। तो नाउ वी कैन सी इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल हो गए हैं, यू कैन सी दिस इज कैंसिल्ड, 8 आयोटा कैंसिल हो गया, दिस इज वी हैव 15 माइनस 7 तो 8, so this is 8 plus 6 iota modulus whole square. So what is modulus of this complex number? This is 10 because 64 plus 36 आ जाएगा, this is under root of 100 which is 10, so this is 10 square मतलब 1000, ठीक है। और यहाँ से आपके पास कितना है, this is v नॉट स्क्वायर भी आपके पास है, ठीक है। एक सेकेंड, wait, this is 1000 नहीं 100 because 10 है ना ये, तो this is 100 और 100 plus 900 इधर से because v नॉट स्क्वायर भी है, v नॉट स्क्वायर, तो this is 100 और this is 900, so final answer will be 1000. So what is the answer? Option A is the answer for this question, ठीक है। So I hope this is clear. Important, इसमें important point ये है, how will you find the minimum value? इसको minimum हमने कैसे find किया? This is what you have to understand. उसके बाद तो सिर्फ calculation से you can easily check this, right? Now let's take the next question. The question is, let S is a set of all the complex numbers such that z square plus z bar is equal to 0. Then find the value sigma z belongs to S. मतलब इस सेट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का सम फाइंड करना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन इज आपको इनका इस इक्वेशन को सॉल्व करके कॉम्प्लेक्स नंबर z और z फाइंड करना है, करेक्ट। तो हाउ विल यू सॉल्व दिस इक्वेशन? आई कैन से व्हाट इज z, लेट्स दिस इज x plus iota y where x and y are some real numbers. We can see if I put this is x square minus y square plus 2xy iota, ठीक है। and this is z conjugate. What is z conjugate? This is x minus iota y, this is equal to 0. ये हमारे पास इक्वेशन। तो now you see this is x square minus y square plus x plus 2xy minus y iota is equal to 0. तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। now this is equal to 0 मतलब इसका रियल पार्ट भी 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा, that means x square minus y square plus x should be 0 and 2x minus 1 into y, this is equal to 0. रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट हमने 0 कर दिया, करेक्ट। सो अब बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यू कैन सी फ्रॉम दिस आई विल हैव टू ऑप्शंस, दैट इज y is equal to 0 और x is equal to 1/2, ये दो पॉसिबिलिटीज है।
So if I take the first case, y is equal to 0. If I take this first case, that is y is equal to 0. अब अगर y 0 है तो you can see y equal to 0 put करेंगे तो this is x square plus x equal to 0, which is x equal to 0 or minus 1. ठीक है. Second case, you can see if I say x is equal to 1 by 2, if I say x is equal to 1 by 2, तो अब इस केस में y का वैल्यू क्या होगा? तो you can see this is y square is equal to x square plus x. You can see x का वैल्यू 1 by 2 1 by 2, तो y square equal to 1 by 4 plus 1 by 2. Y square is equal to 1 by 4 plus 1 by 2, which is 3 by 4. Correct? So what is the value of y? Y is equal to plus or minus root 3 by 2. तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, what are the possible complex numbers? I'm writing this is 0, 0, x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to minus 1, y is equal to 0. All these are complex number which I'm writing. ठीक है, minus 1, 0. अब सेकंड इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? हाफ कॉमा रूट 3 by 2, और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? हाफ कॉमा माइनस रूट 3 by 2. So these are the four solutions of this equation. इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन. तो इस सेट S में these are the complex numbers. करेक्ट? अब क्वेश्चन क्या है? You have to find Z belongs to S, मतलब इन सेट का, इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के सम. तो देखो ध्यान से, what is the sum of all the real parts? You can see this is 1 by 2 1 by 2 minus 1, 0 हो गया. ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट के एडिशंस क्या होंगे? फिर से 0. तो what is the sum? This is equal to 0. आई होप दिस इज क्लियर. रियल पार्ट का एडिशन और ये इमेजिनरी पार्ट का एडिशन. वेट हाँ, 1 by 2 1 by 2 1 और ये माइनस 1 0 हो गया. ठीक है, और इधर भी 0. तो व्हाट इज द आंसर? दिस इज इक्वल टू 0. सो दैट इज हाउ वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. राइट?